Okay, welcome to the Apex Classes EduTech channel. Today we are going to discuss our questions and answer in some upcoming slides. Before we come to that section, I would like to remind what happened in the lesson and how it went throughout up to the ending of this lesson. You might be having in your mind that this lesson was giving emphasis on, or we can say the lesson was showing clearly the relationship between a teacher and his student. Secondly, this lesson was clearly signifying what happens with a school or with its teachers when a war is taking place. On third manner, the teacher, whose name is Mr. M. Hamel, also talks about the importance of language within our daily life. As you know that there is a teacher named M. Hamel and a small student. He might be reading in class 3rd or 4th. One day when student, means French, who is the main character of the lesson, goes to the school, he is passing in front of a town hall, and what he sees that in front of town hall beside a board there is a great crowd. The child who was highly amazed that what is happening now, why there is a crowd in front of the board, he thinks that there is something wrong, that's why there is a great crowd in front of that bulletin board. When he arrives at the school was not as it generally used to be. The school was silent. The teacher was wearing his new dress, his new cap, his green coat is freely shirt and his silk cap fully embroidered, and he was also silent and serious too. Later the student was coming up to the point that this is not the situation as on daily basis. Actually on that bulletin board there was written we can say an order, and order says that Germany have captured 2 of districts of France, and from today these French districts named Alsace and Lorraine will be come under the sovereign of German rule. The student is highly surprised. Why? Because it was declared that from next day there will be no German, from next day there will be no French lesson. So student was highly embarrassed because he thought that why I wasted my time in seeking bird's egg or so and so. Finally he know that our teacher Mr. M. Hamel is going permanently from here, and since many days the person who was working so great with his profession, मतलब एम हेमल जो है इतनी सक्रियता से अपना जो व्यवसाय कर रहे थे, इतनी सक्रियता से अपने जो पढ़ाने का काम कर रहे थे, बच्चा जो है इज ट्राइंग टू फील द स्ट्रेस ऑफ टीचर. बच्चा ये महसूस करने की कोशिश कर रहा है कि कितना अजीब लगेगा उस टीचर को जो लास्ट 40 ईयर से यहाँ बहुत फेथफुली सर्विस कर रहा है और उसके लिए इस जगह को छोड़कर जाना. बट लेसन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है दैट इवन ऑन द लास्ट डे द टीचर गिव हिज होल डे और होल डेट डेज स्कूल टाइम फॉर टीचिंग. वो लास्ट डे था उस टीचर के लिए. जो टीचर है वो बातें कर सकता था, बच्चों से पुरानी यादें ताज़ा कर सकता था, बट इन स्पाइट ऑफ टॉकिंग सम दिस साइड और देयर साइड थिंग, उसने सब कुछ छोड़ के उस टीचर ने लास्ट दिन भी सिर्फ पढ़ाई की ही बात करवाई. और टीचर ने जो है वो जाते जाते जो स्टूडेंट्स है उनको ये बताया कि हाउ देयर लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, हाउ फ्रेंच इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर life, how he says that French is the most logical, clearest and beautiful language in the world. So ये जो लेसन है वो आपको एक अध्यापक और एक बच्चे का जो रिश्ता होता है उस पर, युद्ध के समय स्कूली जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पे, और इसके अलावा एक जो अध्यापक होता है उसका जीवन किस प्रकार का होता है, वो बच्चों से कैसे बहुत डीपली कनेक्टेड होता है, और उसके रहने और नहीं रहने से क्या फ़र्क छोटे बच्चों पर पड़ता है. ऑल दीज थिंग्स आर वाइडली covered and widely reflected in all these lines of the text, and Alphonse Daudet has written a great work. Before some time this story was also given in the Dainik Bhaskar, so we can assume that the story is very important. कुछ ही दिनों पहले दैनिक भास्कर में ये कहानी भी आई थी अल्फोंस डेडो द्वारा लिखी हुई. पूरा इसका हिंदी में जो मैंने जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया है वो उसका
वर्णन था। और जो क्वेश्चन है उसमें हम वही डिस्कशन कर रहेंगे कि किस प्रकार से जो बच्चा है वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग फ्रॉम स्कूल। एंड सेकेंड हम क्वेश्चन ये भी हमें देखने को मिलेगा कि वाई एम हेमल इज़ एन इम्पोर्टेंट टीचर। एम हेमल का जो कैरेक्टर स्केच है कि वो एक पेट्रियोटिक है, वो देशभक्त है, वो अच्छी लैंग्वेज टीचिंग करता है, वो लास्ट दिन भी बड़े अच्छे से पढ़ाता है। इस प्रकार की कुछ जो चीज़ें हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा आपसे ये व्यक्तिगत निवेदन है कि इससे पहले कि यू कम टू दिस सेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, you should read the lesson thoroughly with the help of your dictionary, or we can say with the help of the word meaning I have taught you in all these classes. And after that you will be able enable yourself to score some good marks in your upcoming board exams or your unit test, as we can say. Okay, let's start the discussion of question and answer. Okay, as you can see on your screen, it says question number first, why was the narrator? What do you mean by narrator? Narrator mean one who narrates, or in Hindi we can say वर्णन करता. Narration means वर्णन and narrator means वर्णन करता. Okay, so in other words we can also say author, or we can say लेखक. Okay, why was the narrator scared of going to school that morning? Scared means what? Afraid of. Scared means afraid of. In Hindi we can say बेबित, और in English we can say scared of that morning. उस दिन वो जो बच्चा था जो कि लेखक बना है लेसन में, वो स्कूल जाने से पहले डर क्यों रहा था? तो आंसर क्या है? आंसर इज दैट फ्रेंच टीचर had asked the students to prepare. What do you mean by prepare? Prepare mean make ready. ठीक है. in Hindi we can say तैयार होना, और यहाँ हम कह सकते हैं तैयार रखना, यानी याद करके रखना. टीचर ने उसे कहा था सभी स्टूडेंट्स को कि वो तैयार रखे ए लेसन ऑन पार्टिसिपल्स. व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपल्स? वी कैन से वर्ब्स फॉर्म, क्रिया जो है उसके रूप. बट ही न्यू. हु इज ही हियर? ही इज फ्रेंच. हियर हु इज फ्रेंच. न्यू. व्हाट इज न्यू? जाना, और वी कैन से जानता था. लड़का यानी फ्रेंच जानता था नथिंग, कुछ भी नहीं, अबाउट देम, उसके बारे में. ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? देम किसके लिए यूज हुआ है? पार्टिसिपल्स के लिए. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा ऑन दैट डे फ्रेंच, फर्स्ट थिंग फ्रेंच वाज लेट, सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू स्कूल एंड फेस हिज टीचर बिकॉज ही वाज श्योर दैट ही विल गोइंग टू बी बैडली बीटन बाय हिज टीचर. सो व्हाट इट लेटर सेज दैट मोरेवर. इन हिंदी मोरेवर का मतलब क्या होता है? देखिए आप, मोर यहाँ खत्म हो रहा है एंड ओवर. सो व्हाट इट सेज, और तो और. इसके कहने का मतलब इतना ही नहीं, मोरेवर ही वॉज लेट फॉर द स्कूल. वो स्कूल के लिए क्या था? लेट था. ये दूसरा कारण है. सो ही थॉट, इसलिए वो सोचता है. व्हाट डू यू मीन बाय थॉट हियर? थिंक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थॉट है, जैसे मैंने आपको बताया था. दैट ही वुड बी स्कोल्डेड. व्हाट डू यू मीन बाय स्कोल्डेड? ठीक है, इन हिंदी वी कैन से डांटना. बच्चे को डर है कि उसे स्कूल में डांट पड़ेगी. दिस इज वाई, यह कारण है कि द नरेटर जो वर्णन करता है वो स्कैर्ड मीन्स डर गया था, ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, उस सुबह जो बच्चा है वो स्कूल जाने से डर रहा था. सो एक वापस हम रिपीट करते हैं. क्वेश्चन ये है कि उस दिन बच्चा स्कूल जाने से क्यों डर रहा था? लेखक उस दिन स्कूल जाने से क्यों डर रहा था? तो फर्स्ट रीजन इज, पहला कारण ये है कि ही न्यू नथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स. And second point is that on that day he was late for the school, so the boy thought that there are great chances that I might be beaten by the teacher, so he decided to not to go to school and remain whole the day out of the doors. Okay, what did Franz see as he passed to the town hall? You know meaning of town hall? Town hall क्या है? देखिए हर जो शहर होता है, जैसे गांव में जैसे
किसी भी प्रकार का फंक्शन है, जनरली गवर्नमेंट स्कूल इज यूज। गांव में किसी भी प्रकार का फंक्शन है, वेदर इट इज़ पंचायत मीटिंग, वेदर इट इज़ ए बिग सेरेमनी, वेदर कलेक्टर इज कमिंग, वेदर चीफ मिनिस्टर इज कमिंग इन योर स्कूल और इन योर विलेज, द मेन फंक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन योर विलेज स्कूल। गांव के स्कूल में जो ज़्यादातर फंक्शन होता है, शहर में जो है ऐसा नहीं होता है। जनरली ए बिग hall with sufficient amount of capacity to sit on a town hall is formed। है तो ये कह रहा है कि फ्रेंच ने उस दिन क्या देखा जैसे ही वो टाउन हॉल से गुजरा। तो राइटर यहाँ कहता है there was a bulletin board as I have already told you what is bulletin board is a type of notice board जिस पर कुछ जो है वो लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, नोटिस बोर्ड। तो राइटर सेज दैट देयर वाज ए बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। पहली बात यह है कि टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड था। इट गेव पीपल, ये देता था लोगों को क्या, न्यूज, खबरें ऑफ द लॉस्ट बैटल्स। ये लॉस्ट मीन्स ये नहीं खो गया, इसका मतलब हार गया, हारे हुए। बुलेटिन बोर्ड पर हारे हुए युद्ध का वर्णन किया जाता था और यानी यह द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना में एक जो पद है कमांडिंग ऑफिसर, उसका कभी कभार ऑर्डर आता था। ऑर्डर कुछ भी लिखा जा सकता है कभी कभार। ये 1870 की बात है तो शायद कमांडिंग ऑफिसर कभी कभी जो एलसेक का जो एरिया है वहाँ पे जो टाउन हॉल है जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे लिखा जाता था कभी कभार कि आज शाम को जो है सेना का एक जत्था आने वाली है, बटालियन आने वाली है, तो वो गांव में ही रुकेगी, तो उन लोगों के खाने और पीने की जो व्यवस्था है गांव वालों को करनी है। कभी कभार ऐसा ऑर्डर आता था। कभी कभार ऑर्डर ये लिखा हुआ आता था कि सेना के अंदर कुछ और सैनिकों की भर्ती होनी है, इसलिए गांव के जो युवा हैं उनको जो है वो सेना में शामिल होना है। तो ये दोनों ही जो खबरें गांव वालों को उतना उत्साहित नहीं करती थी। कभी कभार लिखा रहता था कि हम युद्ध हार गए हैं, तो ये जो एरिया है जो अभी तक फ्रांस के तहत आता था अब जर्मनी के तहत आएगा, इस प्रकार की जो खबरें होती थी कमांडिंग ऑफिसर की वो उस पर लिखी जाती थी। तो आज क्या हो रहा है, फ्रांस ने देखा ए लार्ज क्राउड, फ्रांस ने देखा एक बड़ी सी भीड़। व्हाट डू यू मीन बाय क्राउड? देखिए क्राउड का सिंपल सा अर्थ होता है हिंदी में भीड़, लेकिन इसके सिनोनिम या समानार्थी कह दें या पर्यायवाची इंग्लिश में हम देखें तो थ्रोंग जो है ये एक अलग वर्ड हो सकता है आपके लिए। थ्रोंग का मतलब भी भीड़ होता है, इसके अलावा मॉब का मतलब भी भीड़ होता है और इसके अलावा गैदरिंग का मतलब भी भीड़ होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। इन सभी का मतलब जो है भीड़ होता है। तो बच्चे ने देखा कि यहाँ तो सभी प्रकार के नेगेटिव खबरें ही होती है, तो आज यहाँ पे जो है इतनी सारी भीड़ है, तो मैटर क्या है, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड टू रीड द लेटेस्ट न्यूज। तो आज की जो खास या हाल ही की जो खबर है उसको पढ़ने के लिए काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। ये उस लड़के ने देखा जैसे ही वो बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर स्कूल जा रहा था। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हु वर, कौन थे द विलेज पीपल, वो गांव वाले लोग कौन थे। किन लोगों की बात कर रहा है, उन लोगों की बात कर रहा है जो क्लास में बैठे थे पीछे के बेंच पे। हाउ डिड दे लुक, वो देख रहे थे। यहां इसका मतलब ये नहीं होगा देख रहे थे, यहां इसका अर्थ होगा कि वो कैसे दिख रहे थे, वो कैसे दिख रहे थे। इन इंग्लिश वी कैन से अपीयर्ड, वो देखने में कैसे नजर आ रहे थे। तो राइटर कह रहा है द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाइटली? गांव के जो लोग थे पहली बात कैसे बैठे थे, शांत बैठे थे। ऑन दी बैक बेंचेज, कक्षा में जो पीछे की बेंचेज जहाँ खाली रहती है जनरली, या वहाँ ऐसे बच्चे बैठते हैं जो पढ़ाई में कम रुचि रखते हैं, तो वो जो बेंचें थी जनरली खाली रहती थी, लेकिन वहाँ पर कुछ गांव के लोग बैठे थे बिल्कुल शांत तरीके से। वर, उनमें थे ओल्ड होजर। जैसे मैंने बताया कि होजर तो किसी आदमी का नाम है, होजर तो किसी आदमी का नाम है, तो हम इसे कह सकते हैं प्रॉपर नाउन है। ये एक प्रॉपर नाउन है। फॉर्मर का मतलब मैंने आपको बताया था भूतपूर्व। इसके अलावा वहाँ पर क्या था, भूतपूर्व मेयर था, शहर का जो मेयर होता वो था। दे फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो भूतपूर्व पोस्टमास्टर था गांव का या उस शहर का वो था। एंड सेवरल अदर, सेवरल का अर्थ आप जानते ही हैं, लिख दें। सेवरल का अर्थ होता है कई। देखिए जब एक होता है तो उसे सिंगल या मोनो बोलते हैं, जब दो होता है तो उसे बहुत बोलते हैं, जब तीन या तीन से अधिक होते हैं तो उन्हें सेवरल बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं तो उन्हें मैनी बोला जाता है। तो इसके अलावा भी कई दूसरे लोग थे। दे वर लुकिंग वेरी सैड, वो दिखने में कैसे दिख रहे थे, बहुत उदास दिख रहे थे। यू नो मीनिंग ऑफ सैड? अपॉन नोइंग, ये जानने पर, अबाउट द
जर्मन ऑर्डर, अबाउट द जर्मन ऑर्डर। जब उन्हें यह पता चला कि जर्मन जो है उन्होंने जो ऑर्डर भेजा है बर्लिन से, और वो ऑर्डर क्या था, जर्मन ऑर्डर ये था, फ्रॉम नेक्स्ट डे ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, सो न्यू टीचर विल अराइव ऑन नेक्स्ट डे। उस बुलेटिन बोर्ड जो टाउन हॉल के बाहर था उस पर यह ऑर्डर लिखा हुआ था कि कल से जो है वो जर्मन पढ़ाने के टीचर आने वाले हैं, तो फ्रेंच का जो लेसन है वो आज लास्ट लेसन है, इसलिए ये ऑर्डर उस बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था। नो वी आर हेडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डिड मिस्टर हेमल, यू नो हु इज हेमल, आपको याद है ना, बिल्कुल, ही इज टीचर ऑफ फ्रेंच, वो क्या है, फ्रेंच का अध्यापक है और फ्रेंच पढ़ाता है। व्हाई डिड एम हेमल से दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, एम हेमल जो कि फ्रेंच पढ़ाता है, फ्रेंच को वो क्यों कहता है कि ये उसका अंतिम पाठ है। ऑन बोर्ड इट इज रिटन, मिस्टर हेमल सेड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, मिस्टर हेमल कहते हैं कि ये उसका अंतिम पाठ है, बिकॉज क्योंकि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। व्हाट डू यू मीन बाय बर्लिन हियर, बर्लिन मीन्स कैपिटल ऑफ जर्मनी, कैपिटल ऑफ जर्मनी। ओके, तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि टू टीच, कि पढ़ाया जाएगा ओनली जर्मन, क्या पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। ये जो दो क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, किसके, पहले फ्रांस के थे और फिलहाल किसके अंतर्गत आ रहे हैं, जर्मनी के अंतर्गत आ रहे हैं, इसी कारण इनमें अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो पहले स्थान का नाम ये है और द्वितीय स्थान का नाम ये है। इसके अलावा उस बुलेटिन बोर्ड पे लिखा होता एंड दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, इसलिए फ्रांस की भाषा में पढ़ा जाने वाला ये आज उनका अंतिम पाठ है। और क्या लिखा था, द न्यू मास्टर केम दी नेक्स्ट डे, और जो नए मास्टर हैं वो केम नहीं होगा, यहाँ क्या लिखना है, कम्स, और जो नए जो टीचर हैं वो कहाँ आएंगे, अगले दिन यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगे। ऐसा जो है उस बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था, और इसीलिए एम हेमल ने कहा बच्चों तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का ये जो है वो पढ़ा जाने वाला लास्ट लेसन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड, हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में कई बार बोलते हैं एटीट्यूड ये है वो है, ज़्यादा है कम है, खूब सारी बातें होती है, बट यहाँ एटीट्यूड को हम रियल में हम क्या कह सकते हैं। देखिए हिंदी में एटीट्यूड का मतलब होता है वृत्ति, क्या होता है, वृत्ति, इसे हम हिंदी में मनोवृत्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप लुकआउट भी बोल सकते हैं, और यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसे हिंदी में नज़रिया भी बोल सकते हैं, इसे सोच भी बोल सकते हैं। ओके, हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज बुक्स, कि जो फ्रेंच का जो नज़रिया है अपनी किताबों के प्रति और एम हेमल के प्रति वो बदल गया, कैसे, अब यहाँ देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है डिड, और यहाँ पे चेंज है, तो ये डिड जब आप इसको आंसर करेंगे क्वेश्चन को तो डिड जो है वो रिमूव हो जाएगा और चेंज की जगह चेंज्ड हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है, क्वेश्चन जो है वो बड़ी सटीक रियलिस्टिक बात कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रेंच का जो एटीट्यूड है अपने टीचर और बुक्स के प्रति वो कैसे बदल गया। तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये अच्छे से स्थापित तथ्य है कि साल भर चाहे आप 11th में है, 12th में है, बीएससी एमएससी कहीं से भी है, तो साल में कई बार जब आपके एग्जाम्स होते हैं आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है, कभी कभार रिवाइज करके और पढ़नी पड़ती है, तो आपको ये काम थोड़ा सा बोरिंग वगैरह लगता है। लेकिन जब लास्ट डे होता है, जैसे कल से कोई स्कूल नहीं आएगा, आप घर पे प्रिपरेशन कर सकते हो, आप जो है सिर्फ अपने डाउट सॉल्विंग के लिए आ सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बच्चों को वो जो किताबें हैं, वो मित्र, जो अध्यापक, जो क्लास की सीट्स, जो अपना जो क्लासरूम है, वो जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, साल भर जो एक उबाऊ जगह उन्हें लगती थी वो उन्हें बड़ा प्यारा लगने लग जाता था। ये मानव की एक प्रवृत्ति है कि हाथ से जब चीज़ फिसलती हुई लगती है तो वो स्वतः ही अच्छी लगने लग जाती है। इंसान के मामले में भी ऐसा ही है, जब व्यक्ति चला जाता है चाहे वो किसी भी टाइप को, हालांकि हर एक के साथ तो नहीं होता, बट ज़्यादातर लोग जीते जी उन्हें कैसे भी अनुभव रहे हों, लेकिन मृत्यु होने के पश्चात वो अपने आप ही समाज की और परिवार वालों की नज़रों में बेहतर बन जाते हैं। चलिए हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। फॉर्मरली, जैसे मैंने बताया था कि फॉर्मर यानी होता है भूतपूर्व, तो यहाँ फॉर्मरली का मतलब क्या हो जाता है, पहले, यानी लेखक पहले की बात बता रहा है। पहले
फ्रेंच डिड नॉट लिसन टू हिज टीचर, फ्रेंच अपने टीचर की बात सुनता नहीं था। अब बात सुनने का मतलब ये नहीं है कि वो कान पे अपने हाथ दे देता था, बात सुनने का मतलब ये है कि वो टीचर की बात को लाइक नहीं करता था, टीचर उसे याद करने के लिए देता तो वो पढ़ता नहीं था। तो पहले फ्रेंच जो है वो अपने टीचर की बात को केयरफुली यानी ध्यान से नहीं सुनता था, बट नो ही इज लिसन टू हिम क्वाइट अटेंटिवली। व्हाट डू यू मीन बाय अटेंटिवली? ठीक है, अटेंटिवली का मतलब ये है केयरफुली, ठीक है। लेकिन अब वो सुनता है उन्हीं की बात को क्वाइट यानी परफेक्टली, क्वाइट मीन्स व्हाट, परफेक्टली, पूरी तरीके से। अब उन्हीं टीचर की बात वो बड़े परफेक्टली सुनता था। इसके अलावा तो टीचर के बारे में उसका ये विचार या धारणा बदली, हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर इंक्रीज्ड, उसका जो क्या था टीचर के प्रति जो सम्मान था वो धीमे धीमे क्या हो गया, उसका ग्राफ है वो बढ़ गया। ही बिगन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन आप जानते हो ना, देखिए बिगिन यानी शुरू होना, बिगिन यानी क्या होना, स्टार्ट होना या शुरू होना, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी क्या है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। और बिगेन, BEGAN, ये इसकी क्या है, सेकंड फॉर्म है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगन। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये वर्ड काफ़ी आता रहता है और अक्सर आप एग्जाम में इसको लिखते हुए गलती करते हैं। तो देखिए वापस, ही बिगेन टू लव हिज बुक्स, उसे वो अपनी किताबें भी प्यारी लगने लगी। कौन सी किताबें, द बुक्स दैट सीम्ड टू, व्हाट डू यू मीन बाय सीम्ड, सीम्ड मीन्स लुक्ड। देखिए लुक यानी देखना भी होता है और दिखना भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतीत होती थी, जो किताबें उसे प्रतीत होती थी। और कैसी प्रतीत होती थी, जो किताबें उसे प्रतीत होती थी, टू हैवी, बहुत ही ज़्यादा भारी, हैवी यानी भारी आप जानते हैं, एंड न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स व्हाट, नॉट गुड, जो किताबें उसे अच्छी नहीं लगती थी। अवाइल एगो, इन तीनों का एक ही मीनिंग निकाल सकते हैं हम, बिफोर सम टाइम, बिफोर सम टाइम। तो जो किताबें पहले उसे अच्छी नहीं लगती थी, वर हिज फास्ट फ्रेंड्स नो, वो किताबें क्या हो गई थी, उसकी फास्ट फ्रेंड हो गई थी। देखिए फास्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, फास्ट फ्रेंड का मतलब ये नहीं तेज मित्र, फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है, हिंदी में कह सकते हैं लंगोटिया यार, और इंग्लिश में कह सकते हैं क्लोज फ्रेंड, यानी हम अपनी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, पक्के वाला दोस्त। और पक्के वाला दोस्त कौन, पक्के वाला दोस्त जिसे आपके ज़्यादातर राज पता होते हैं, वो होता है आपका पक्के वाला दोस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैड फ्रेंच नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल, फ्रेंच जो है वो स्कूल में बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाया। ठीक है, लर्न का मीनिंग आप जानते हैं। ओके, राइटर सेज दैट फ्रेंच हैड नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रेंच स्कूल में ज़्यादा कुछ याद क्यों नहीं हुआ, तो इसका आंसर ये होगा कि फर्स्ट थिंग दैट फ्रेंच पेरेंट्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ सेंडिंग हिम टू स्कूल, दे जनरली प्रीफर्ड to send him to some meal or field so that they can even get some more money। फ्रेंच एक गरीब लड़का था, तो उसके पेरेंट्स की हमेशा यही कोशिश होती थी कि बजाय कि ये स्कूल जाए उसकी बजाय इसे खेत में भेजें, इससे कुछ काम वाम करवाया जाए ताकि उसे एक्स्ट्रा पैसा मिले। दूसरा जो कारण था वो एम हेमल बताते हैं कि जो फ्रेंच को कुछ समझ में नहीं आता है या फ्रेंच को जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, उसके पीछे कारण ये है कि कभी कभार उसका जो टीचर है जिसका नाम एम हेमल है, वो जब उसका मूड होता था कि आज तो मैं पढ़ाने का मूड नहीं है, आज तो मैं मछली पकड़ने जाऊंगा, तो पूरी स्कूल की क्या कर दिया करता था, छुट्टी कर दिया करता था। और तीसरा जो रीज़न है वो भी एम हेमल ही बताता है कि कभी कभार जब बच्चा पढ़ रहा होता था, फ्रेंच पढ़ रहा होता था, तो टीचर उसे कह देता था, फ्रेंच उठो और बाहर जो बगीचे में पौधे लगाए हुए हैं, गमलों में जो पौधे हैं, उनको ज़रा पानी पिला के आओ। दीज आर द 3 रीजन्स मेंशन्ड इन द आंसर दैट व्हाई फ्रेंच वर नॉट एबल टू लर्न मोर थिंग्स इन स्कूल एज फॉर लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू एम हेमल, फ्रेंच हैड नॉट बीन एबल टू लर्न मच स्कूल, फ्रेंच स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाया बिकॉज, क्योंकि ही यूज टू गो फॉर सीकिंग। सीकिंग मीन्स व्हाट, मैंने आपको बताया था, सीक यानी ढूंढना, इसकी सेकंड फॉर्म ये लिख रहा हूँ मैं, आप देखिए, ढूंढना, सीक यानी क्या होता है, ढूंढना, और इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो है सॉर्ट, वो क्या है, SOUGHT। ठीक है, इसका मतलब सर्च करना होता है। तो फ्रेंच ज़्यादातर जो है वो चला जाता था सीकिंग बर्ड्स, एक अंडों को ढूंढने के लिए, एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार,
ठीक है। सार का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर फिसलने के लिए चला जाता था। इंस्टीड ऑफ, ये आपके लिए न्यू वर्ड तो नहीं है बट आप इसका यूज करते हैं, कम करते हैं, या तो ये गलत करते हैं। इंस्टीड ऑफ यहाँ हम लिख सकते हैं की बजाय, मतलब पढ़ाई करने की बजाय वो ये करता था, या तो पक्षियों के अंडे ढूंढता था और यह क्या करता था, फिसल पट्टी एंजॉय करता था स्टडिंग, पढ़ने की बजाय। ओके, द बुक्स सीम्ड, तो सीम्ड का मीनिंग आपको अर्थ हो गया होगा याद, एपियर्ड। सीम्ड मीन्स एपियर्ड, और हम कह सकते थे लगती थी। क्या लगती थी, किताबों की बात कर रहा है कि किताबें उसे लगती थी। ए न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स नॉट फेवरेबल, जो उसे अपने पक्ष वाली नहीं लगती थी, किताबें उसे पसंद नहीं थी। एंड हैवी टू कैरी, एंड हैवी टू कैरी, कैरी मीन्स व्हाट, टेक विद समवन। किताबें उसे स्कूल लाना ले जाना भारी बोझ बस्ते के जैसा लगता था, वो नहीं चाहता था कि मुझे किताबें स्कूल ले जानी पड़े। लेकिन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि टीचरिंग गोइंग परमानेंटली फ्रॉम दिस स्कूल एंड दिस बुक्स विल बी नो लॉन्गर बी यूज्ड इन दिस क्लासरूम और इन माई बैग, दिस बुक सीम टू बिगन हिज गुड फ्रेंड्स। ये किताबें तुरंत ही उसे क्या लगने लग गई, अच्छी लगने लगी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, What did Mr. Hamel say about the French language? फ्रेंच जो भाषा है उसके बारे में एम हेमल ने क्या कहा। तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, इन एग्जाम यू ऑट नॉट टू बी कंफ्यूज बिटवीन फ्रेंच, फ्रेंच एंड फ्रांस। आपके माइंड में तीनों वर्ड अलग रहने चाहिए। फ्रेंच क्या है, लड़का है। फ्रेंच क्या है, फ्रांस के लोग या फ्रांस की भाषा है। एंड फ्रांस क्या है, एक नेशन है, कंट्री है। ओके, तो क्वेश्चन 7 ये है कि जो एम हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है। वो फ्रेंच पढ़ाया करता था, वो फ्रांस की भाषा, फ्रेंच का अध्ययन करवाया करता था, वो भाषा का अध्यापक था मेरी ही तरह। तो वो अपनी भाषा को लेकर क्या कहता है, तो वही क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। एम हेमल इज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज लैंग्वेज। एम हेमल अपनी भाषा से बहुत प्यार करता था। तो यदि आप किसी एयरफोर्स वगैरह का एग्जाम दे और ऐसा पूछ ले क्वेश्चन कि जो लैंग्वेज का लवर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो जो लैंग्वेज का लवर होता है उसे लिंग्विस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे लिंग्विस्टिक बोलते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं भाषाविद। क्या बोलते हैं, भाषाविद। तो वो अपनी भाषा को बहुत प्रेम करता था। हिज प्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेस, इन इंग्लिश वी कैन से एडमिरेशन, इन हिंदी, इन इंग्लिश वी कैन से एडमिरेशन एंड इन हिंदी वी कैन से प्रशंसा। वो प्रशंसा करता था फॉर हिज मदर टंग। व्हाट डू यू मीन बाय मदर टंग, आप मीनिंग जानते हो। मदर टंग का मतलब माता की जीभ नहीं है, माता की जीभ नहीं है, लेकिन माता से सीखी हुई भाषा, ठीक है। इन हिंदी वे से मातृभाषा। व्हाट डू यू मीन बाय मातृभाषा, मातृभाषा नहीं, ये नीचे वाला रे नहीं है, री होता है। मातृभाषा। सोज मीन्स हिज ग्रेट लव फॉर फ्रेंच। वो जितनी अपनी भाषा को लेकर प्यार करता है उससे यह साफ जाहिर होता है ही इज़ इन लव विथ हिज लैंग्वेज, कि वो अपनी भाषा को जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ही सेज दैट, वो ये कहता है फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज हैपनिंग इनटू ब्यूटीफुल। देखिए भाषा सुंदर कैसे हो जाती है, क्या भाषा सुंदर होती है, नहीं। लिखावट सुंदर हो सकती है, भाषा सुंदर नहीं होती है। लेकिन फिर भी भाषा सुंदर होने की बात कर रहा लेखक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये भाषा इतनी अच्छी है कि ये सभी लोगों को सुहाती है, सभी लोग इससे प्रेम करते हैं। कैसे करते हैं, सभी लोग इससे प्रेम इस प्रकार से करते हैं कि बहुत, जैसे इंग्लिश वगैरह है तो ये इंग्लिश में जैसे लगभग 1066 के आसपास जब हमला हुआ था इंग्लैंड पे, नॉर्मंडी का, या यूँ कह सकते हैं फ्रांसीसी लोगों का, तो वहाँ पर जो है वो लोगों ने तुरंत ही इंग्लिश को छोड़ के फ्रेंच की भाषा को अपना लिया। और थोड़े ही सालों में लगभग 10,000 शब्द फ्रांस भाषा के ऐसे थे जो इंग्लिश में यूज होने लग गए थे। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि फ्रांस बहुत सुंदर भाषा रही है, और जो बहुत ज़्यादा मटेरियल, देखिए लैटिन में भी बहुत लिखा हुआ है, ग्रीक में भी बहुत लिखा हुआ है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मैटर किसी में लिखा हुआ है तो वो फ्रेंच भाषा में। तो इनका जो पहला पॉइंट ये है कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो बड़ी सुंदर है। इट इज़ द क्लियरेस्ट, ये क्या है, सबसे स्वच्छ भाषा है। तो फिर वही बात हो गई कि भाषा स्वच्छ कैसे होती है,
तो सोचने वाली बात यह है कि फ्रांस की भाषा, फ्रेंच में जो है अन्य भाषाओं से शब्द आए हुए नहीं है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है ना, अपभ्रंश हो जाते हैं, शब्द बिगड़ जाते हैं, कई पाली भाषा से आए हैं, कई प्राकृत से आए हैं, उर्दू, अरबी, फारसी, डच, पुर्तगाली से आए हैं हिंदी में, लेकिन फ्रेंच में ऐसा कम से कम है। यानी फ्रेंच जो भाषा है वो अपने आप में ही है, फ्रेंच जो है वो वही है, उसमें बाहर के शब्द बहुत कम है। एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल? हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? लॉजिक यानी तर्क, और हिंदी में कह सकते हैं तार्किक। तो फ्रेंच भाषा जो है वो सबसे तार्किक भाषा है। अब फिर एक नई बात कि तार्किक भाषा कैसे होती है। ओके, ये है कि जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर भाषाएं जिस प्रकार से बोली जाती है उसी प्रकार से वो लिखी जाती है, ज़्यादातर, सब नहीं। तो जैसे संस्कृत है तो जिस प्रकार से वो बोली जाती है इसी प्रकार से संस्कृत का उच्चारण लिखा जाता है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता है। लेकिन इंग्लिश में जो है वो ऐसा नहीं है। जैसे बहुत कॉमन जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो ये है, जैसे इसे हम कट बोलते हैं लेकिन इसे पुट बोलते हैं। तो यहाँ यू एक ही मात्रा ले रहा है या ऊ की मात्रा क्यों ले रहा है, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। सपोज मैं बोल दूँ WRITE, ठीक है, तो इसे बोला जाता है राइट, इसे बोला जाता है राइट। अब सोचने वाली बात है कि ये तो वराइट होना चाहिए, लेकिन नहीं, W साइलेंट रहता है, W साइलेंट रहता है तो क्या बनेगा? WRITE। ई भी साइलेंट रहता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में ई है तो वो भी साइलेंट रहता है। तो यदि मैं इसको छुपा भी लूँ और इसको भी छुपा लूँ तो भी RIT राइट होगा, और यदि ये W है, ठीक है, और ई है तो भी इसे राइट ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है चेंजेज है, ये जो है वो क्या है? चेंजेज है। जैसे मैं लिख दूँ फेम, जैसे मैं क्या लिख दूँ? फेम यानी प्रसिद्धि, तो इसमें ई हटा दो तो भी ये फेम ही पढ़ा जाएगा, ई इसमें से हटा दिया जाए तो भी क्या पढ़ा जाएगा? फेम ही पढ़ा जाएगा। ये आपके सामने लिखी हुई लैंग्वेज, LANGUAGE। अब आप ई को हटा दो तो भी क्या पढ़ा जाएगा? लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस इज इलॉजिकलिटी ऑफ बीइंग इंग्लिश। तो ये इंग्लिश है जिसमें लॉजिक थोड़ा कम है, लेकिन फ्रेंच भाषा में ऐसा नहीं है, ऐसा M. हेमल ने बोला। योर्स, ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग अपेक्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।